So hello students, in this video we are going to discuss about one more important topic, that is Ohm's law. So इस टॉपिक में हम जानेंगे कि Ohm's law क्या होता है और क्लास 9th एज वेल एज 10th दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. And in this video lecture we are going to discuss about Ohm's law. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंडर में एक टॉपिक है Ohm's law, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो समझते हैं पहले Ohm's law क्या होता है and how we define it and how it works and what is the importance of Ohm's law in our electricity or electrical physics. So class 9th और 10th दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज Ohm's law. सो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि Ohm's law क्या है. एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है, एक लॉ है जो कि एक हमारे फेमस साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज साइमन ओम, जिनके द्वारा दिया गया है. तो चलिए समझते हैं कि Ohm's law क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है. क्या था कि सर जॉर्ज साइमन ओम ने कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी और करंट फ्लोइंग प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग एक लॉ दिया, जिसमें इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू Ohm's law they told us that voltage flowing in a conductor is directly proportional to the current. So what they told, that voltage is directly proportional to the current. So according to this, if we are applying this thing, voltage directly proportional to the conductor. So according to this formula, if we are removing this proportional sign, so it will be V is equal IR, where I is the current flowing in the conductor. And what is V? You know very well, V is the voltage source. इस voltage source से हमने इस current में current supply दी है इस conductor को. एंड R इज द कांस्टेंट, ये R है, ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या है. अब अगर रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, उस बॉडी उस कंडक्टर में करंट फ्लोइंग को अपोज करती है. ओके, सो वी कैन से इट इज ऑब्जर्वर ऑफ द बॉडी. Now let's see what is Ohm's law. So Ohm's law के according they told V proportional I. So V is equal IR, जैसे हमने बताया. So R is equal V by I, ये हम जानते हैं according to Ohm's law, ये फॉर्मूले है. So this is our constant. What I say, this is constant. What I mean to say constant? Constant का सेंस ये है कि if we see this formula R is equal V by I carefully, so if we increasing the value of voltage, so the value of current will also increase proportionally. For example, in a conductor the value of voltage say 10 volt and previously the current was 5 ampere, but now further we have increased the voltage up to 20 volt, so the value of current will also increase automatically 10 ampere. It means the ratio will always be 2 in both cases. So this is the basic law that the given by Sir George Simon Ohm. So George Simon Ohm ने जो law दिया था according to Sir George Simon Ohm, उन्होंने बताया कि किसी भी करंट में, किसी भी सर्किट या कंडक्टर में द फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है,
V जो होती है I के प्रोपोर्शनल चलती है। सो दे टोल्ड दिस, V प्रोपोर्शनल I होता है। सो V प्रोपोर्शनल I के अकॉर्डिंग अगर हम V को इक्वल में लिखते हैं, सो I into R and R is the constant, so R is equal V by I। Now फॉर्मुलाइज करें इसको फर्दरली, सो R is equal V by I से यहां पे एक यूनिट भी लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है, उसको भी देखते हैं। सो R is equal V by I से that is our voltage and I is the current। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। व्हाट इज दिस? V by I रेशियो। तो चलिए देखते हैं इस V by I रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कंडक्टर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया से A, so cross sectional area is this A and length of the conductor say L meter, so L meter is the length। So we know that resistance also depends upon some factors, so now we are going to discuss about what are those factors in which resistance depends। So the number first factor is that resistance depends upon length L। Length means length of the conductor, so resistance depends upon the length of the conductor। And number second, this is number first point, and number second is resistance depends upon temperature। Temperature means what the mean of temperature, कि अगर हम कंडक्टर के मटेरियल का टेम्परेचर या कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सो उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो कीप इन माइंड कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इट इज द सेकंड फैक्टर। एंड द थर्ड फैक्टर इज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। What does it mean? इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मोटा वायर है कंपेरिजन, तो इस मोटे वायर का और एक हमारे पास एक थिन वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज स्मॉल है एंड इस कैपिटल ए मोटे वायर का, तो जिस भी वायर का ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना लो होगा। मतलब कहने का सेंस है इस मोटे वायर का इस पतले थिन वायर की कंपैरिजन में रेजिस्टेंस डाउन होगा क्योंकि इसका ए जो है वो ग्रेटर होगा इस स्मॉल ए से, राइट? ए विल बी ग्रेटर टू स्मॉल ए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे ए और दोनों कंडक्टर्स हमारे बिहेव करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल ए की वैल्यू है स्मॉल ए से ज्यादा है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डाउन होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ओके, एंड व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का सेंस क्या है कि किस मटेरियल का हमारा कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल, इफ आवर conductor is made of copper, or say it is made of aluminium, or say it is made of silver, gold and whatever. So इस पे डिपेंडेंसी होती है हमारे रेजिस्टेंस की. इट मीन्स एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की है कि अगर सेम वायर के सेम मटेरियल के दो वायर हमने लिए हैं तो उन दोनों की रेजिस्टेंस
क्या रेजिस्टिविटी सेम होगी, राइट। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है, मैंने बताया मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक वायर कॉपर का ये लिया है एंड से इट इज 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर ली है, और एक वायर हमने और एक्स्ट्रा लिया है अनदर, एंड इसकी लेंथ हमने ली है एंड सेम मटेरियल के, मैंने बताया ये भी कॉपर का ही है, एंड द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 10 सेंटीमीटर, बट हमने लेंथ देखिए इंक्रीज की है, बट इससे इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो मैंने बताया, क्योंकि सेम है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। मटेरियल पे डिपेंडेंसी होती है, राइट, बट लेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, क्योंकि लेंथ इसकी 2 टाइम्स है, तो लेंथ से हमारी जो रेजिस्टेंस होगी इंक्रीज होगी, बट लेंथ से और मटेरियल से दोनों की डिपेंडेंसी हमें चेक करनी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि सेम मटेरियल के वायर की रेजिस्टेंस सेम रहेगी, और अगर डिफरेंट है तो उसकी डिफरेंट होगी। तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया कि व्हाट इज ओम्स लॉ एंड यू नो हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज डेफिनेशन, कि ओम्स लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी हमारी करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में, किसी कंडक्टिंग वायर में ओम्स लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिन्होंने सर जॉर्ज साइमन, जो कि हमारे एक फेमस फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एक बार रिवीजन करते हैं क्विकली कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ किसी कंडक्टर या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी हियर इन बोर्ड दैट V is proportional given is I। इस रिलेशन से हमने क्या किया है, V इक्वल IR यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ओके, सो I इक्वल V बाई R हो गया, या R इक्वल V बाई I भी लिख सकते हैं आप, राइट। सो ये आपको अच्छे से माइंड में कैप्चर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज ओम्स लॉ एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज डेफिनेशन, एंड वन मोर थिंग, इट्स यूनिट इज ओम। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, एंड इसका सिंबल होगा दिस इज, यू कैन से ओमेगा। ये ओमेगा से मैंने इसको दिखाया है, इसका सिंबल है, और इसकी यूनिट है ओम। और एक और यूनिट बनती है R इज इक्वल V बाई I पे जाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस वोल्ट पर एम्पियर, सो वोल्ट पर एम्पियर इज आल्सो सेकेंड यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।